We are sitting with CS Vivek Sharma. Over to you, sir. Now you tell me what exactly you do. Being a startup, I am not much aware about the technology. Like if you are making the robot, if you are using the technology, I am not aware. But I can help you in your legal manner कि कहाँ पर आपका स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता, कौन कौन सी ऐसी वो गलतियाँ स्टार्टअप करते हैं जिनसे वो लीगली साउंड नहीं होते और फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है ऑन देयर रोल कि जी आप स्टार्टअप से पैसे मत लेना, आप हमसे पैसे ले लेना और स्टार्टअप का काम फ्री में करें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हु रिक्वायर्ड अ कंपनी सेक्रेटरी, वेदर दैट सो फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द स्टार्टअप टू द यूनिकॉर्न कंपनी टू द लिस्टेड कंपनी, एवरीवेयर द कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड। ये लोग भूल जाते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का सिर्फ रोल सिर्फ इनकॉर्पोरेशन तक है, बट माइंड इट सर, रोल लाइफ टाइम तक है। लाइक वी आर अ कॉर्पोरेट डॉक्टर, योर बिजनेस इज नॉट गोइंग इन अ ट्रैक and you want to shut down your company. That is the biggest challenge in India. How to? Because it is very easy to start the company, but it is very difficult to close the company. और एक छोटी सी बात, 100 रुपीज़ का फॉर्म 10 लाख रुपीज़ तक पेमेंट करी है लोगों ने, पेनल्टीज बढ़ती हैं 100 रुपीज़ पर डे के सबसे। एक कोट है, इफ़ यू थिंक compliances are expenses, then try non-compliances. So we are going to talk about something really, really interesting and more than interesting, absolutely critical to business. If you're an entrepreneur, this is an episode that you just can't miss. What is the lifeline of a business? एक business की जीवन धारा जो होती है ना, वो मूल मंत्र है, मूला. That is the money that flows into it. You know? अगर पैसा नहीं है तो business ही नहीं है. Business का first rule है पैसा बनाना, right? And that is where a CA comes in use. You know, a CA guides you as good, kind of a financial consultant as well. Okay? So CA tells you what's happening with your money. All right? What's happening with your company accounts. What you need to do. What you don't need to do. ये सब चीजें एक तरफ. But do you know that the company as an entity, वो एक अलग तरफ, एक अलग ही एंटिटी है, विच इज अ टावर इन इटसेल्फ, राइट? किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी, यू नो, इवन इन द बुक्स इट इज रेफर्ड टू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, एज अ लिविंग बीइंग। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द लॉ के बुक्स के अंदर इट इज रेफर्ड लाइक दैट. दैट मीन्स इट हैज अ सोल, राइट? एंड दैट सोल नीड्स टू बी intact. Right? It has to be tight, watertight. There's no gap of air leaking out from any of its system, any of its processes when it comes to the company as an entity. Right? But who makes sure, वो कौन है जो ये decide करता है कि it is all in actually in order according to the compliances wanted by the government of the nation? See, there are one kind of taxes that are there, that the CA does, but there's another kind of return which only a company secretary can do. Imagine what I'm trying to say. When I say company secretary, it's a very, very huge phrase and a very, very huge responsibility. एक कंपनी का MD होता है, डायरेक्टर होते हैं, उनकी PA होती है, पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी. How important is that? आपने देखा होगा, वी सीन इट इन मूवीज, वी सीन इट इन रियल लाइफ. पर्सनल सेक्रेटरी होता है बॉस. दैट इज द पर्सन यू नीड टू गेट इन, बट बिकॉज़ दैट पर्सन मैनेजेस द बॉस टोटली. And that is how the company secretary manages the company totally. Without that company secretary, your company is in doldrums, especially if you're a private limited, LLP, public limited, you know, those OPC kind of, you know, different terminologies that are there. You need a CS. And even if you have an in-house CS and you're a big company, public limited company or bade size ki ho, you have to have an external CS for the audit. That's absolutely critical. That is a law that you cannot forego. But the greater thing is, remember this thing. If you want to go, and get your heart checked up, you need to go to a heart specialist and not a general physician.
a CA can never do what a CS does, because what a CS does is something that is absolutely special and critical. And with us today, especially for all the entrepreneurs out there, we have someone who is an encyclopedia of what a company secretary does. He is an encyclopedia of wisdom when it comes to company secretary, an encyclopedia of knowledge, an encyclopedia of do it right and always do it right. With us is the founder, director of Deep Dive Corporate Advisors LLP, CS Company Secretary विवेक शर्मा. थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे सेट के ऊपर विवेक जी. थैंक यू सो मच. एंड आप आके आज हमारे साथ एक ऐसा ज्ञान शेयर करने वाले हैं जो बहुत कम लोगों ने शेयर किया है दुनिया के साथ. एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ये बहुत जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली अ कंपनी सेक्रेटरी डज, एंड नो वन बेटर देन यू. आपको हमने देखा है कितने लोग आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड कितना क्रिटिकल है आपका काम. एंड सो thank you so much. Welcome to another episode of the Great Indian Brand Show. We are sitting with CS Vivek Sharma. Over to you, sir. Now you tell me something about your company and what exactly you do. Thank you so much, Sudarshan sir, for inviting me here. So, regarding the company secretary, as you are already mentioned that there is a difference between the C and CS. Nowadays, every business start looking for a company secretary. Regarding, as you are aware that now the compliances in India is very strict. Yeah. They want everything should be in line. So to compliance with the law in a true letter and a spirit, the word true letter and spirit, you must require the company secretary. Now the question arises, who required a company secretary? Whether that, so from the individual to the startup to the unicorn company to the listed company, everywhere the company secretary is required. Yeah. So the role of the company secretary is like, if you want to incorporate a business, either you can incorporate a private limited company, either you can incorporate a public limited company, you can incorporate a LLP, limited liability partnership. You must require a good company secretary with you. And it's not about, because I have seen in my, because I have a 14 year of experience, and I have seen in the past that people during the incorporation of the company or the business, they are very excited. They have just incorporated it, then they forget the company secretary as well as the compliances. ये लोग भूल जाते हैं कि company secretary का सिर्फ रोल सिर्फ incorporation तक है. But mind it sir, रोल लाइफ टाइम तक है. लाइक वी आर अ कॉर्पोरेट डॉक्टर, राइट. सो अगर हम बर्थ दे रहे हैं एक कंपनी को, एक बिजनेस को, तो उसको चलाना भी पड़ेगा. लाइक अ बेबी को आपने स्कूल भी डालना है, उसको बड़ा भी करना है, ग्रो भी करना है. अगर वो एजिड हो जाएगा तो उसका उस समय एज अ पेंशन उसका ध्यान भी रखना है. तो सेम लाइक विद द कंपनी, सो विद द बिजनेस. तो आप बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, हम सिर्फ इनकॉर्पोरेशन तक लिमिटेड नहीं है. आफ्टर द कंप्लायंस, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, वी मस्ट टू हैव टू कंप्लायंस, वी हैव टू फॉलो लाइक अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस. आफ्टर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन देयर इज अ एनुअल कंप्लायंसेस. सो अगर हम वो कंप्लायंसेस करते हैं तो हमारी कंपनी एक एक्टिव कंप्लायंट कंपनी होती है. नाउ अ डेज द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट. You have to, and if you are doing the business in the registered entity, so there is a thin line difference between the registered entity or unregistered entity. So like a proprietorship firm, so that is the traditional form of a business. People are doing the business in the traditional form. So that is not registered anywhere. So proprietorship firm not registered in anywhere. You just have to take the GST number or the MSME number. Only the two certificate is required to open the current bank account. Once you open the current account, you have to start the proprietorship firm. Yes. It's a simple game. Simple game. ठीक है, आपने business start कर दिया और आपका business start हो गया. But like I am giving one example, like आपने एक गणपति एंटरप्राइजेस के नाम से, I'm just taking the quote the name. It's a mock company. हमने एक example ले लिया, गणपति एंटरप्राइजेस. So आपने एक कंपनी बनाई, एक proprietorship firm बनाई, ओपन किया और आपने काम स्टार्ट कर दिया. Now I have seen that सुदर्शन जी ने गणपति एंटरप्राइज बनाई, बहुत अच्छा काम चल रहा है. सेम कंपनी मैं भी बना सकता हूँ. यू कैन नॉट स्टॉप मी बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर. दैट राइट. तो आप कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ये सबसे बड़ा क्लू है. कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती. देयर इज नो लॉ एट ऑल. यस. ओके. बट पीपल आर इन द शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि भैया हमें कंप्लायंसेस कम करने पड़ रहे हैं, कॉस्टिंग रिक्वायरमेंट कम है, कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट. So people are thinking about the less, but if you are
vision is very high. If you want to touch the sky, then you have to register your business organization from the very first day. And I have delivered lot of session at the various platform like a Delhi Technical University और Delhi University. I am a speaker also. So मैं startup को एक यही advice करता हूँ कि आप whatever you want to do the business, start the business with the business entity, registered entity, not the unregistered entity. Because let's see कि आपने एक unregistered entity से एक business startup किया और आपका business बहुत अच्छा चला. What happened? और आपका competitor ने आपको copy कर लिया. You can't stop it because you are not registered. So हमारा एडवाइस है फर्स्ट जैसे आप इसको रजिस्टर्ड कराइए, रजिस्टर्ड एंटिटीज हुई, उसके बाद जैसी आपकी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है देन आपको उसकी कंप्लाइंसेस करनी है और जैसे इसको कन्वर्जन करते हैं. सो हमारा जो एम है वो ये है, स्टार्टअप्स को मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है विद द नेम ऑफ लीगल गाइड टू स्टार्टअप. तो लीगल गाइड ऑफ स्टार्टअप्स में देखो, बीइंग अ स्टार्टअप आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, लाइक इफ यू आर मेकिंग द रोबोट, इफ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट अवेयर, बट आई कैन हेल्प यू इन योर लीगल मैनर कि कहाँ पर आपका स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता, कौन कौन सी ऐसी वो गलतियाँ स्टार्टअप करते हैं जिनसे वो लीगली साउंड नहीं होते और फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल. आपने एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब मैं आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ बट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन कंपनी. लाइक इन्वेस्टर इज सिटिंग आउटसाइड दिस रूम बट यू आर नॉट हैविंग द रजिस्टर्ड एंटिटी. तो फर्स्ट माइनस पॉइंट. Second, if you want to do the business, right, and business is going well, now we have not entered in any co-founder agreement, right? Co-founder agreement नहीं है, आपने अपने IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर नहीं किया. दैट इज अ इन्वेंशन थी, आपने पेटेंट नहीं कराया, आपको आपका ब्रांड नेम था, आपने उसको ट्रेडमार्क नहीं कराया. तो जब ये छोटी छोटी चीजें आपने नहीं कराई हैं, बहुत बड़ी जाती हैं, तो अब आपने तो ग्रो कर दिया, अब पीपल आर सिटिंग आउटसाइड टू कॉपी यू. मतलब ये बात वही हो गई, हम मिस करते रह गए और गुलाब कोई और ही देके चला गया. राइट. सो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग कि आपको हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये ना हो कि हम तो मेहनत करते रहे लेकिन कॉपी कोई और करके चला गया. सो इन इंडिया यू हैव अवेयर दैट कि कॉपी करना फर्स्ट, मतलब ओरिजिनल से पहले हम कॉपी कर लेते हैं. सो इट शुड बी कि हम प्रोटेक्टेड कैसे रहें, राइट. प्रॉपर आपका IPR होना चाहिए. प्रॉब्लम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. यस, बहुत जगह वर्ल्ड में है but that somewhere, it becomes, you know, plagiarism is there worldwide. Right. But their law is very strict. They have to check the from the very first instant date. So they are more aware about the organization and the system. नहीं, absolutely. So I am just giving the difference between the Indian and any other things. So जैसे जैसे आप आगे अगर आपने चाहना है, आपको वो करना है, आपको ग्रो करना है बिजनेस को, तो आपको एक रजिस्टर्ड एंटिटी में ही काम करना चाहिए. सो आई एम हैविंग अ 14 year of experience and I have started my practice from very first day. And my wife, CS Divya Bhargav, is also a practicing company secretary and she is my partner also. So my office is located in Pithampura, right? So my aim is that the startup should not be failed just because of they are not legally sound. Whether they have hired. So one thing you have told me in the initial that you have already mentioned to the viewers that most of the time people are aware knows that अगर एक बड़ी कंपनी है, like एक listed कंपनी है या बड़ी कंपनी है, then the practicing company secretary is not required. There must be a practicing company secretary to check whether the whole time company secretary is doing the work in an accurate manner or not. That is called the third party certification. So being a secretarial auditor, so nowadays company secretaries' values are increasing. So we are not stick with the registrations, we are stick with the compliances, we are doing the winding up. Now, let's say if you want to, your business is not going in a track and you want to shut down your company. That is the biggest challenge in India. How to? Because it is very easy to start the company, but it is a very difficult to close the company. Because law wants that it should be in a proper rules and regulation that is mentioned in the acts. So कैसे आपको कंपनी को बंद करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कंपनी को बंद करना है तो वो उसको किस तरीके से आपको कंपनी को आगे लेके जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस वाइंडिंग अप हो गया. नाउ इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस इन अ very rightful manner or a fruitful manner, you must take the compliances along with the certifications. So what type of a certification is required? So first certification is startup certification.
Startup India registration you should must required. Start, Yeah, I've heard of that one. yes. तो Startup India registration कराना है. Government of India during the tenure also they have allotted 10,000 crore rupees. Government of India ने allot किए To startup. टू स्टार्टअप्स कि आप आई, हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, आपका बिजनेस ग्रो होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी. अगर हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारी इंडियन की इकोनॉमी ग्रो होगी. सो अब नाउ वन स्लोगन इज देयर टू बिकम अ जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर. आप आज की डेट पे जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर ना बनो. सो विद दिस स्लोगन अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक स्टार्टअप सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. So now the question is who can become the startup? So there is a threshold limit like 10 years of age should be there. 10 साल पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए. Only the company, LLP and the registered partnership are allowed to become a startup, Okay. right? And there should be a innovation. कुछ innovation होना चाहिए, whatever right? it is. Yes. If there is no innovation, then the growth should be there, right? It should be an original entity. So there is some parameters. If you fulfill, you must to have to apply the startup certificate. Once you get the startup certificate, you have to get the lot of benefits that is provided by the Startup India certificate. And the most important thing, people are not aware that they are providing the tax holiday. Means you can give the 3 years income tax assumptions if you are having a startup certificate. So I'll ask something very pertinent over here जो आप कह रहे हैं कि देखिए कि ये सारा चीजें इस तरीके से करने का नंबर वन सी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स उन्होंने बताया है कि लाइक यू नो लाइक प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. आपने अपना ब्रांड नेम आईपीआर करा रखा है, दैट हैज नो मीनिंग. वो एक अलग चीज है, उसकी बात नहीं हो रही है. यू नो लाइक एज एनीबडी कैन ओपन द नेम अ कंपनी इन दैट नेम एंड हैव अ डिफरेंट व्हाट डू यू से मतलब क्या कहते हैं लोगो एंड ब्रांडिंग फॉर दैट. वो हो सकता है, वो नाम सेम हो सकता है, आपकी कंपनी का चेक कहीं सेम नाम आ सकता है और आपका दूसरा अकाउंट हो सकता है. वो सारी चीजें हैं. सो यू नो व्हाई क्रिएट कंफ्यूजन, दैट इज द एंटायर आइडिया. इट इज बेटर टू रजिस्टर एंड गो. क्योंकि देखिए जो बता रहे हैं ना, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं एक आपको बात बताता हूँ. आप शोरूम गए और आपने एक बहुत बढ़िया कार खरीदी अपने लिए, लेकिन आप जिंदगी में कभी कार सर्विस नहीं करवाते. It will slowly rip every part of it as time goes down. There are many moving parts to that car. That car is your company which has many compliances which are the moving parts which need to be serviced. और गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, सब लीगल है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, लॉस में नहीं जा रही है, कोई उधारी नहीं है, किसी का पैसा हमने ज्यादा टाइम तक ले नहीं रखा, हमने सबके पैसे टाइम पे दिए. क्योंकि आपको पता है 1.5 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, ऐसा पता नहीं कुछ चीजें आई है. आसिया कीप्स टेलिंग अस दीस थिंग्स. तो ये सारी चीजों को देखना ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है. सो दैट इन द बुक्स योर कंपनी एग्जिस्ट एज अ हेल्दी पर्सन. जब आप बीमार पड़ते हैं ना, नोबडी वांट्स टू सी कि आप कितना खास रहे हो कितना नहीं खास रहे. सब कहते हैं डॉक्टर ने क्या लिखा दिखाओ, जरा रिपोर्ट दिखाओ. Right. तो कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स दैट रिपोर्ट फॉर योर कंपनी. आई विल पुट इट दैट वे. सही Yes. बता रहा हूं, अगर मैंने Exactly. सी एग्जांपल Right, ताकि right, लोगों right. को समझ में आए Right. जो आप कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है. राइट. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो मेरे को आप एक बात बताइए, ये आप जो चीजें कर रहे हैं लाइक स्टार्टअप्स वगैरह, आप विल कम टू सर्टेन थिंग्स इन दैट कि 14 साल से यू हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस. सो इसके अंदर हाउ डू यू लुक एट प्रोग्रेस इन दिस बिजनेस एज अ कंपनी सेक्रेटरी. मतलब क्या ड्यूरिंग द एंटायर टाइम Yes. आप अपनी नॉलेज गेन करते रहते हो या आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए और उसके बाद सिर्फ नहीं, काम कर रहे हो? हाउ डज इट वर्क? So first of all, learning never dies. नहीं, So obviously. तो जैसे हमें लर्निंग करनी ही पड़ती है क्योंकि every next day new laws come into the picture. So we have to Oh. update ourselves. अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा. लाइक जैसे आज हम ट्रेडिशनल कंपनी सेक्रेटरी या ट्रेडिशनल प्रोफेशनल के बारे में बात करें और जो न्यू कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो यंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनके पास नॉलेज की बात करें क्योंकि वो डेली अपडेट्स आ रहे हैं. डेली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक कर रहा है कि कहाँ पे भी हमारे पास कोई भी अगर लकूना है उसको कैसे फुलफिल करना है. सो इसलिए हमें अपडेशन रहनी ही पड़ेगी. इसी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टअप्स के बारे में बताया, ऐसे MSME के बारे में बताता हूँ. माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज हाँ. एक छोटा सा एक्ट है जिसको कोई जानता भी नहीं था. हाँ. आज की डेट में वो सबसे इतना बड़ा ज्यादा है. act मैं बता रहा हूँ, मेरी हाँ. नई कंपनी से बात हाँ. हुई, कहते हैं अपना MSME सर्टिफिकेशन भेजो. यस. एंड सो
Mr. Vivek is actually the CS of even my company, ACDS Global Branding Private Limited, और हाँ सर करते रहते हैं सारी चीजें। तो मैंने कहा यार ये इतनी इट्स सच अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर मी, Yes. क्योंकि मेरे बस की ही नहीं है वो चीजें समझना। इट इज Right. बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। एंड आर सीए इज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। अजय मेहरे इंसान, वो हमारे सीए अलग है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर। कई बार तो ये और हमारे सीए आपस में फाइल्स और डिटेल्स एक्सचेंज कर रहे होते, मुझे पता भी Right. नहीं होता कि ये चीज है, बिकॉज इट्स Right. हैपनिंग दैट वे। Right. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो आपने Yes. जो चीजें बोली हैं। राइट तो जैसे आपने 2000 आपने बोला कि 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या चेंज मिला, तो ऐसे मल्टीपल मतलब सेम लॉ को कितनी डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया गया है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट पास ऑन हो सके। तो एक बहुत बेसिक बेनिफिट है जो एमएसएमई में है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में, कि अगर आप किसी भी एमएसएमई से डील करते हो और 45 डेज से ज़्यादा उसकी पेमेंट होल्ड करते हो, यू हैव टू रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। So this types of a laws came into the picture. Even the name is changed. पहले हम MSME बोलते थे, फिर माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बोला हमने, जैसे MSME बोला, उसके बाद उद्योग आधार बोला, और फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। So the purpose, the certification, the value of the certification are same, but they are come with the more power. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं समझ गया आपकी हाँ, बात को कि yes, सो इट इज सच अ स्पेशलाइज्ड जॉब। yes, 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 yes. Okay. So I would ask something like आप see there are a number of things. अगर मैं 10 लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से देखो ना, फाइनेंस की फील्ड में 8 या बल्कि 9 मेरे को सीए नजर आएंगे, लेकिन सीएस एक नजर आएगा। Right. ऐसा क्यों है? ऐसा- Why did you choose such a field? क्योंकि मेरे ख्याल से the first time I heard the name company secretary was when I was in class 10 or 11, और मेरी सिस्टर के पास था कुछ पढ़ने का, आई थिंक कंपनी सेक्रेटरी पढ़ना है। मैंने कहा ये कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? दिस मस्ट बी रियल फन। Right. एंड आई रिमेंबर माय सिस्टर सेड शी वाज मोर कंफर्टेबल विद साइंस एंड ऑल। कहती है आई कैन नॉट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल दैट। मैंने कहा यार ये होता क्या है? एक कंपनी लिखा है, सेक्रेटरी लिखा है, सेक्रेटरी तो होगा और क्या होगा? बट देन नाउ दैट आई नो सिंस, सो what are the things that people need to be careful of? Yes. So company secretary is equal to the compliance officer of the company. आपको मैं एक बात बताऊंगा कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज अ KMP, की मैनेजर पर्सनल्स। सो बड़ी बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एंट्री करने के पास जो पावर है वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के पास है। Not even the chartered accountants. I'm not demeaning the other professional. I respect my fellow No, professional. absolutely. Yes, That's not our intention. ये rule बना हुआ है तो rule बना हुआ है. yes, That's- that is that's a the rule. That is a rule prescribed by the government of India. So company secretary is the specialization. एक स्पेशलाइजेशन है जो कि आजकल दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। सो मुझे मोटिवेट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के मोटिवेशन आफ्टर पासिंग द कॉमर्स BCom, so we have only 3 or 4 options are left. Either I have to choose the chartered accountancy or a company secretary or a cost accountant, or last but not the least the MBA. So I have choose the which things that is the power of the company secretary ki we are in the less number but our voice are very strong, our work are very strong. So even no listed company can do the work. Listed, I am talking about the listed now. In the past, we have talking about the private limited company or startup. Now move to the listed company. So without the secretarial audit done by the practicing company secretary, no can file the document to the listed company. So lot of certification they required. So they had SEBI required lot of practicing company secretary कि आप ये आएँ और ये वाली प्रैक्टिस आए। हमें जब तक PCS ने साइन कर दिया, practicing company secretary ने साइन कर दिया, we are taking care of the company compliances in very good way. Otherwise हम इसको नॉन कंप्लायंस कंपनी कर देते हैं। इवन फॉरेन फंडिंग आ रही है आज की डेट पे, आपने देखा फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो फॉरेन फंडिंग आती है तो RBI की कंप्लायंसेस होते हैं, फेमा के कंप्लायंसेस होते हैं। इन लॉट ऑफ फेमा कंप्लायंसेस दे रिक्वायर्ड ओनली द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन कि वेदर ऑल द कंप्लायंसेस, वेदर इट इज़ अ कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज़ अ फेमा। क्योंकि हमने इतना थियोरटिकल एक्ट्स पढ़े हुए हैं, राइट, थियोरटिकल एक्ट्स जिसको हम प्रैक्टिकल में डील कर रहे हैं, हमने इतने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, तो हमारे से वो पहले सर्टिफिकेशंस लेते हैं कि ये कंप्लायंसेस कंप्लीट हो रहे हैं, तभी हम इनको आगे ग्रांट देंगे, तभी हम इनको आगे आपको ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। तो विदाउट ड्यू डिलिजेंस आपको फंडिंग नहीं मिल सकती। सो यू कैन
now I hope you have received the answer why I have choose the company secretary as compared to the other courses. Because it's far more Yes. critical. Yes. And you know, that is what aapka, I think your passion was into Yes. playing a key Yes. role. Yes. That has been the Right, driving force right, behind it, right. that you want to get into a key role position. That is the reason why you took company secretary. Yes. Right? People are running with the same area, but if you are running in the different area, you will become one area king. I agree. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. So, how do you help people start their business? मतलब when you say start their business and close their That business. is, yes. So that is a very good question. So we first of all we do the like आप मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट? तो हम ऐसा नहीं कि सीधा आया कोई भी सीधा उसको एक ही दवाई दी और चला. हमने क्या किया, उससे पहले उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके फ्यूचर, उसके विजन पूछे. उसके बेसिस पे हम उसको एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो इंडिया में अलाउड है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उसको सजेशन करते हैं वेदर द LLP इज सुटेबल टू यू, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेदर द OPC इज सुटेबल टू यू, whether the private limited company is suitable to you, whether the limited company is suitable. It is dependent upon the vision of the client. So we are not client कि हम उनको बताते हैं. But tell me something. What if the client has a narrow vision or a vision that is beyond comprehension? Yes, ये तो possible ही नहीं है. Right. How does a client recognize that? Do you help recognize that to the client? Yes. We have some certain questionnaire. We have to ask it. What is your, why you are incorporated a business? What is your vision? Whether you want to take the funding from the startup, you want to take the funding from the investors. अगर आपके ये विजन्स हैं तो इट शुड बी कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही खोलनी है. अब एक पर्सन आता है वो कहता है मुझे बिजनेस करना है, मुझे कहीं से फंडिंग नहीं लेनी है, बट मैं रजिस्टर्ड एंटिटी में करना चाहता हूँ, लेस कंप्लायंसेस में करना चाहता हूँ. तो देन वी हैव आस्क्ड कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP चूज करो. LLP. तो हम ऐसे डिजाइन कर रखा है जो लॉ के हिसाब से हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हम बता एक दें. बार बताएं कि जैसे मैंने आपसे पूछा था हाउ डू यू हेल्प अ बिजनेस स्टार्ट, राइट. तो आपने बोला था, तो इसके अंदर दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा. हाउ डू यू हेल्प बिजनेसेस टू स्टार्ट एंड आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटअप्स ऑफ बिजनेसेस? अगर इसके ऊपर अगर आप एक और डिफरेंस क्या होते हैं उनके अंदर, कि मतलब मेरे को क्योंकि कभी समझ नहीं आया कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों हूँ, OPC क्यों नहीं हूँ, और मैं पब्लिक लिमिटेड क्यों नहीं बन सकता. तो ये सारी चीजें समझने के लिए पब्लिक लिमिटेड का तो खैर थोड़ा आइडिया मेरे ख्याल से आई हैव टू हैव एन IPO और समथिंग, देन आई कैन डू दैट. लेकिन OPC, LLP ये सारी चीजें मेरे को पता नहीं. सो प्लीज, आई एम श्योर देयर आर मेनी लाइक मी हु वुड लाइक टू नो दैट. राइट. सो सबसे पहले हमें ना, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, राइट, तो हम किसी को ना ऐसे एडवाइस नहीं करते कि जी आपको ये करना है. हम उसके विजन जानते हैं. अब जैसे विजन सबके डिफरेंट होते हैं. किसी को फॉरेन फंडिंग लेनी है, किसी को नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग लेनी है, राइट, किसी को फंडिंग लेनी है, बस काम करना है, राइट. सो ऐसी जगहों पर हम अलग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे कहीं से फंडिंग नहीं लेनी, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, तो हम आपको प्रोप्राइटरशिप तो हम एडवाइज ही नहीं करेंगे क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड एंटिटी है. तो हम आपको एक फर्स्ट बोलेंगे कि आप LLP बनाओ, लिमिटेड, यस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. 2008 के अंदर एक एक्ट आया, LLP एक्ट आया, जिसने आपको एक ऐसी प्रोविजन दे दी कि आपकी लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी. तो आपको सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस करते करते लेट्स से मिस्टर X हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका बिजनेस लॉस हो गया, तो आपकी पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं आ जाएगी, बिकॉज LLP इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. आपने एक अलग से बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सेपरेट आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं, आपका घर बार नहीं बिक जाएगा क्योंकि आपका बिजनेस लॉस होगा, क्योंकि आपने एक अलग एंटिटी बना दी. तो दैट इज कॉल्ड द लिमिटेड. आपकी लायबिलिटी उतनी लिमिट है जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ. तो मैं एक चीज इस पे जानना चाहूंगा. आपने बोला कि देखो कि मेरा घर बार नहीं बिकेगा अगर ऐसा हुआ, तो वो जो मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बनाई, उसके अंदर मैंने पैसा कहाँ से डाला? हाँ. आप सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी इनकॉर्पोरेशन करते हैं उसमें इनिशियल पैसा आपको अपने से लगाना पड़ता है, राइट. उसके बाद आपने बिजनेस किया या लोन से या कहीं से आपने पैसा लिया, तो आपने उसको रोटेट किया, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, कहीं से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया. मैं कह रहा हूँ कि लेट से मिस्टर A हैं जिन्होंने एक LLP बनाई और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा कर रहे थे, उनका गुड फेथ था, बोनाफाइड इंटेंशन थी, मालेफाइड इंटेंशन नहीं थी, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी कि लॉ को चीट करना है, किसी को चीट करना है. अगर वो नहीं थी और वो एक नॉर्मल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई लॉस हो जाता है,
राइट। हाँ। तो अगर नॉर्मल द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई लॉस हो गया उसको, तो उसके पर्सनल एसेट से पे नहीं आएंगे कि चलो जी आपकी गाड़ी बेच देते हैं, अब हम आपकी गाड़ी को ऑक्शन पे ले जाते हैं, आपके घर को ऑक्शन पे कर जाते हैं। तो वहाँ पर उसके पास एक प्रिविलेज मिल जाता है कि मैंने एक इनकॉर्पोरेशन करी थी, लिमिटेड लायबिलिटी, दैट द पिक्चर्स काम द लिमिटेड लायबिलिटी, कि जितना मैंने बिजनेस में किया और मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ और मेरी बोनाफाइड इंटेंशन है, वो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड। आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट मिस्टर एक्स हैं जो कि उन्होंने फ्रॉड कर दिया। उनका पर्पस यही था कि मैं डिफीट करता हूँ लॉ को, जान के लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज बनाई उन्होंने, एलएलपी बना ली, और उसके बाद जानकर बैंक से लोन लिया और बैंक को नहीं दिया और बोला कि जी बिजनेस लॉस हो गया, आप ले लो पैसा, क्योंकि मैं तो बिजनेस तो, बट लॉ तब पता चल जाता है कि ये बोनाफाइड इंटेंशन है या मेलाफाइड इंटेंशन है। एंड सिमिलरली तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड में भी ऐसा होता है सेम, क्योंकि लिमिटेड वर्ड यूज हो रहा है तो वहां होता है। और ओपीसी क्या? ओपीसी इज अ वन पर्सन कंपनी, राइट। अभी आपने बोला, मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड का आजू बाजू वो रूल लेस सेम। अभी मैंने बताया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती क्योंकि वहाँ पे सिंगल पर्सन है। तो 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आया, उन्होंने बाहर से कंसेप्ट उठा लिया कि हम प्रिविलेज दे देते हैं जो सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी से करना चाहते हैं, तो ओपीसी कम इनटू द पिक्चर, वन पर्सन कंपनी। तो इस केस में आपको एक सेकंड डायरेक्टर और सेकंड शेयर होल्डर की नीड नहीं है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो, नीड नहीं है, तो सिंगल पर्सन कंपनी चला रहा है। अब आप समझ पाए कि मैंने आपसे पूछा था कि हम आपका विजन जानेंगे, आपके पर्पस जानेंगे, उसके हिसाब से आपको बिजनेस सेक्टर चूज करने के लिए कहेंगे। तो एलएलपी, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर आपको लिस्टेड करानी है तो आपको लिमिटेड कंपनी, फिर उसको हम लिस्टेड कराते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो एक नेक्स्ट प्रोसेस है, बट येस आईपीओ रिलेटेड है, वो आएगा। तो आपकी जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी आपको कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जाएगी। ओके 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 ओके। सो tell me something, is it not difficult to work with startups and all that, because see funding उसके अंदर इतनी नहीं होती? How much does this entire thing cost around? मतलब ये कितना इसका पड़ता है? देखिए, I'm not asking आपकी consulting, you know, आप जिस लेवल पे बैठे हैं, you might be taking 20,000, 50,000, a lakh, वो बात नहीं है। It is more about कि गवर्नमेंट में ये प्रोसेसेस करने के कॉस्ट क्या बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं, मैं आपको इसी का और नेक्स्ट आपने फायदा एक ये तो बताया कि मेरा घर नहीं बिकेगा प्राइवेट लिमिटेड होने का, प्रोप्राइटर का होगा, लॉस हो गया तो भाई दो पैसे निकाल के कुछ भी करके। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको वहां से नहीं दिखाना, कंपनी अपने अंदर से देखेगी। अच्छा, उसके अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज मेरी कंपनी में पैसा रखा नहीं है, लेकिन मेरे को लॉस हुआ है, तो वो कंपनी भी पैसा रिटर्न नहीं करेगी क्या? वो नहीं, वो करेगी, वो करेगी। कैसे कंपनी के एसेट्स होंगे कुछ, वो कंपनी के एसेट्स ऑक्शंस में जाएंगे, कंपनी को, हाँ यस, मैं वही कह रहा हूँ, एसेट है ही नहीं उस लेवल। कंपनी में एसेट्स नहीं है, आपने बैंक लोन ले रखा है, तो आपको अपनी कंपनी को लिक्विडेट कराना पड़ेगा, राइट। इंसॉल्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपकी इंसॉल्वेंसी में कंपनी चली जाएगी। जो बिजनेस है ना स्टार्टअप, उनको भी हमने इंक्यूबेशन सेंटर में फिट कर दिया कि आप चाहो तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको साथ में एनरोल करा देते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में। तो सारी कॉस्टिंग फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन टिल द एंड वो सारी वो बियर करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है ऑन देयर रोल कि जी आप क्लाइंट, आप स्टार्टअप से पैसे मत लेना, आप हमसे पैसे ले लेना और स्टार्टअप का काम फ्री में करना। क्या बात है। So this is the government is doing something like government this. doing very well for the, because at the end ultimately goal गवर्नमेंट का क्या है कि जितना स्टार्टअप ग्रो करेगा इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। Of course, definitely. I think अभी पीछे भी मैंने सुना था कि 10,000 crores were reserved for some other startup and 300,000 for something else. ऐसे करके, so that is all real money. उससे मतलब बेसिकली लोगों को मौका मिल रहा है अपना बिजनेस बनाने का और आगे चलने का। वो 4 लोगों को एम्प्लॉय भी देने होंगे, जॉब क्रिएटर, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी उनको, है ना? दे आर बिकमिंग जॉब क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग जॉब्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने लिखे लाइक जर्नी टू बिकमिंग अ यूनिकॉर्न, यू आर लुकिंग फॉर दोस काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। सो लेट्स कम टू योर कस्टमर्स। व्हाट आर द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट यू केटर टू? बैंक जब लोन देता है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की सर्च रिपोर्ट चाहता है, वो चाहता है बैंक अपने पैनल पे ले लेता है कि जी जब तक आप सर्च रिपोर्ट नहीं दोगे, कंपनी की कंप्लायंसेस रिपोर्ट नहीं दोगे, हम आपको लोन नहीं देंगे, जब तक आप ये सारे रिपोर्ट्स हमारे को दे देते हैं। ड्यू डिलिजेंस करते हैं हम, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ठीक है, डीडीआर जिसको हम बोलते हैं। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इवन कॉर्पोरेट्स एंड दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को।
जैसे हमें हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करी, वहाँ की जो कंप्लाइंसेस हो रहे हैं वहाँ पे भी हमें हेल्प करनी पड़ती है। What is the speciality that you bring to table? There are Yeah. many company secretaries, यस है ना? यस और कोई अपने मन का लॉ तो चला नहीं रहा, राइट सारे वही लॉ कर राइट रहे हैं राइट जो आप भी इंटरप्रेट कर रहे हैं. यस So why should a client come to you? यस What is your So- brand differentiator? Yes, definitely. So, although सबसे first thing and most thing, to be honest, my good liaising with the government authorities. मेरी लाइजनिंग इतनी स्ट्रांग है क्योंकि मेरे को 14 ईयर्स हो चुके हैं, मैं इतने सारे सेशंस डिलीवर कर चुका हूँ, Absolutely. तो इतने सारे सेशंस डिलीवर कर चुका हूँ. आई एम delivering the session at the government institutions also, so it create a lot of good impact at the government part also. So मेरी लाइजनिंग स्ट्रांग है, that becomes a USP in me. Yeah, so that's what I was coming Yes, to because see मैंने I have seen you over the years and लोगों से भी पता लगता है that आप कहीं ना कहीं जाके बहुत senior platforms and Yes, renowned yes, platforms and yes. forums के ऊपर you have been invited as a speaker. Yes, yes. You go and talk about Yes. details, whatever those details are. Yes. क्योंकि see, I'm not a company secretary, वो आपको पता होगा. Yeah. How did that feel and how did you land up in such places? Because you know, Yes. आपकी उम्र में 36 सी और होंगे, मतलब so many. जैसे मेरी उम्र में भी there are so many people who are there, but we are trying to build up identity. You got approached by that. What was it that made them approach you? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा विजन वेरी क्लियर है, ठीक है ना, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है. तो सेकेंडली अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन पे लाइव सेशन मैंने दिया, लीगल गाइड टू स्टार्टअप ज्ञान दर्शन पे. और उनका जो गवर्नमेंट का, अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी लाइजनिंग स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ज्ञान दर्शन पे उन्होंने इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बात करी. जैसे हम इन्वेस्टर अवेयरनेस कर रहे हैं लीगल गाइड टू स्टार्टअप्स के वे में, तो मैंने वहाँ पे सेशन डिलीवर किया. तो मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ और जितनी भी मेरे को नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ, और जितनी मैं नॉलेज शेयर करता हूँ मेरी नॉलेज और बढ़ रही है. इन सब प्लेटफॉर्म पे जाके yes, see देखिए yes. इवन मी एज अ डिजाइनर यू नो, और हम लोग भी बहुत लोगों से कंसल्ट करते हैं, बात Right. करते हैं ऑल दैट. सो बिकॉज आई सी कि आई एम अ पार्ट ऑफ मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें कई लोग सीएस और सीएस वो डालते हैं Yes. अनाउंसमेंट कब. मैं Yes. कहता हूँ हर रोज ही कोई नया अनाउंसमेंट Yes, आ रहा है. yes. इतना वॉलेटाइल है क्या ये इंडस्ट्री? यस 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 Why is it अपडेशन है. so? सी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी टाइम न्यू एक लॉ के साथ, इवन लॉ को भी इतनी बार अमेंड कर रही है, क्योंकि देखो लूपहोल्स निकल जाते हैं हमारे इंडिया में. लॉ बनने से पहले उसकी लूपहोल्स निकाल लेते हैं. तो उस लूपहोल को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम सब जगह से बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री को सेव करके चलें. और सबसे बेस्ट पार्ट, गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, वो दोनों चीज़ें चेक कर रही होती है कि बिजनेसमैन भी ठीक रहे और प्रोफेशनल्स भी ठीक रहें और गवर्नमेंट भी ठीक रहे. अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उनको रेगुलर अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं. एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड कि अगर आपकी बिजनेस यूनियन ठीक नहीं है, आप बिजनेस ओनर को हार्म पहुंचा रहे हो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस करके, तो भी खराब है. बट अगर बिजनेसमैन ही गलत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में, तो एक ऐसा बैलेंस बना के चलना जिससे सारी फेटर्निटी, चाहे वो बिजनेस फेटर्निटी है, गवर्नमेंट फेटर्निटीज़ हैं, ऑफिशियल फेटर्निटीज़ हैं या प्रोफेशनल फेटर्निटीज, सबको एक वे मिल जाए कि समानता है. और इसलिए उनको रेगुलर कंप्लाइंसेस और रेगुलर अपडेट्स लेकर आने होते हैं. So you telling like you know like being the CAS is like the life jacket when you jump Yes. into an ocean. Yes, yes. Right now there are some things that come with a life jacket. What is the air in the life jacket all about? How and why are you relating to it as a life jacket? Is it because Yes. क्योंकि फाइन लग जाएगा, कंपनी Yes. बंद हो जाएगी? क्योंकि आप जहाँ तक मेरे को पता है, if I have a private limited company folks, और मेरा उसमें 3 साल में कोई काम नहीं हुआ, ना मैंने सिस्टम को ऑन किया या मे बी ऑन करके बंद कर दिया, ना इंटरनेट चला, कुछ नहीं हुआ, nothing has happened. How do I work in that kind of a thing if I want to shut that kind of a company down? Yes. Why does it take so much time? Why is it important for me to wait 3 years, 4 years कि वो बंद हो रही है लेकिन नहीं हो रही? ऐसे बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे. Yes. तो सबसे पहले जो मैंने लाइफ जैकेट की बात करी वो इसलिए करी, लेट से कि हम स्विमिंग कर रहे हैं, राइट. अगर मुझे पता है कि मैंने लाइफ जैकेट पहन रखी है तो मैं बिना टेंशन के स्विमिंग को और आगे तक जा सकता हूँ. सेम विद अगर आपके साथ कंपनी सेक्रेटरी है तो वो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कंप्लायंसेस के बारे में नहीं सोचना, वो आपने टेंशन दे दी कंपनी से, आपकी कंपनी सेक्रेटरी को आपने टेंशन दे दी. तो लाइफ जैकेट, मान लो आपको जैसे रात को भी 10 बजे फ़ोन आया कि मेरे को MSME सर्टिफिकेट चाहिए, अब आप बोलो कि मैं अपने CS से बात करता हूँ, आपके CS के पास पड़ा, उसने आपको दे दिया, तो वो आप रिलेट कर पाओगे कि आपको लाइफ जैकेट की तरह उसने फटाफट प्रोवाइड करा दिया. नॉट अबाउट दिस, मान लो गवर्नमेंट से आपको कोई नोटिस आ गया,
फॉर नॉन कंप्लायंसेस और आपके सीएस ने कर रखा है तो वो कम आपको बचा सकता है पेनल्टी से। और एक छोटी सी बात, 100 रुपीज़ का फॉर्म 10 लाख रुपीज़ तक पेमेंट करी है लोगों ने, पेनल्टीज बढ़ती हैं 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो देर इज नो, यस, तो देर इज नो लिमिट एट ऑल। तो एक कोट है, इफ यू थिंक कंप्लायंसेस आर एक्सपेंसेस then try non-compliances. Yeah. Yes, I so know. आपको I heard लगता this है one, yeah, कि definitely. compliances बहुत expenses हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक बार नॉन कंप्लायंस करके देख लो। Be my case, go and do it. कल को जब लगेगा 1 करोड़ का फाइन तो Fine, तुम्हें खुद देखना exactly, पड़ेगा, है ना? exactly, right. Exactly. So इसमें मतलब लगता है टाइम 2-3 Yes. साल बंद होने 2-3 में। साल इसलिए लगता है, कहीं गवर्नमेंट आपकी इंटेंशन चेक कर रही होती है कि आप रियलिटी में कंपनी को वाइंड अप करने के लिए आ रहे हो या आपने सिर्फ कोई बिजनेस ले लिया और लोगों के साथ फ्रॉड करके आप भागना चाह रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले ये चेक कराओ कि आपने लास्ट 2 साल से कोई बिजनेस नहीं किया हो, आपने कंप्लायंसेस पूरी कर रखी हो और आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो। ये ना हो कि आपने तो कंपनी बंद कर दी, चेक बुक आपकी जेब में पड़ी है, आप लोगों को चेक काट के दे रहे हो, वो बाउंस हुए जा रहे हैं and all that. तो So that will put a bad name to the company, Yes, my reputation yes, and all that. इसीलिए वो लोग वेट करते हैं इतने Yes, टाइम के लिए। yes. Okay. So that's what is happening in my case also, I guess, यस because of that thing. क्योंकि आपने मेरे को बताया था कि नहीं ये थोड़ा ऐसा टाइम लगेगा। तो अच्छा, मैंने एक और चीज भी नोट करी है, मेरे को कई बार ईमेल आता है कंपनी का कि दिस कंपनी नेम इज फॉर सेल, प्रोप्राइटर लगा होता है उसके आगे, या तो पहले लिखा होगा व्हाटएवर इज टू बी रिटन। ये क्या कैन एक्चुअली समबडी बाय? मतलब मेरे को खुद आता है यू वांट टू सेल सीएमवाई के, देयर इज अ बायर। मैंने कहा कौन, मतलब कहां आपको से ये होगा चीजों, CMYK ये का? देखो, आपने कंपनी बनाई है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपने कोई भी चीज, यू आर द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी, आपने सिर्फ उस पर्पस के लिए किया। तो अगर आपका purpose के कंपनी लिए। नहीं चल रहा है तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करो रादर देन उसको सेल आउट करो। स्ट्राइक ऑफ स्ट्राइक क्या मतलब हुआ? बाइंडिंग अप, Winding up. राइट। All right. अदरवाइज आपने फॉर एग्जांपल किसी को सेल कर दी और उसने आगे जाके फ्रॉड कर दिया तो आपको भी नोटिस आ जाएगा, क्योंकि यू आर द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी और द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो फिर उस आई एम केस के एडवाइजिंग कि आपको नहीं करना तो चाहिए। फिर उस केस के अंदर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज आई वांट टू सेल इट, सो डज द सीएस हेल्प इन सेलिंग इट? यस, क्योंकि ट्रांसफर होगा, सेलिंग मीन्स अ ट्रांसफर। सो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाएंगे, आपके डायरेक्टर चेंज हो जाएंगे, आपके शेयर होल्डर चेंज हो जाएंगे। यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन कि लोग खरीदेंगे क्यों? भाई आप सेल कर रहे हो, लोग खरीद क्यों रहे हैं? हाँ, तो खरीदने का पर्पस जहां क्या पे है? उसका जवाब मिल गया फिर तो 100% वो तो yes, बिकेगा ही बिकेगा। yes, दैट्स yes, ऑब्वियस yes, थिंग। सी अपने ब्रांड बिल्डिंग में भी वी ऑलवेज से व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड योर बिजनेस। yes, अपना व्हाई बताओ। yes, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर, वो सारे ही बहुत छोटी चीजें हैं, right. वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा सारा का सारा। सो नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन सो मेनी वेज, क्या एक कंपनी सेक्रेटरी एक अच्छा सीए भी होता है? बिल्कुल होता है, ड्यूअल क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया सारे एक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो अगर हमें जीएसटी एक्ट की बात करें तो जीएसटी एक्ट की हमारे को पूरी नॉलेज है, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो पूरी नॉलेज है। बट अगेन दिस इज द एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो माय एडवाइस टू ऑल ही हायर अ सीए फॉर सीए वर्क, हायर अ सीएस फॉर सीएस वर्क। सो आपके इसके अंदर देखो, मैं दिस ब्रिंग्स मी बैक टू अनदर थिंग। देखिए आपने बताया स्टार्टअप्स एंड देन यूनिकॉर्न्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने आपसे पूछा था ब्रांड प्रॉमिस, तो आपने बताया आप ये सारे कंप्लायंसेस वगैरह करते हैं एंड ऑल दैट वगैरह। नाउ इफ आई आस्क यू योर वन ब्रांड डिफरेंशिएटर, जैसे बाकी की सारी कंपनी जो एग्जैक्टली वो करती है जो आप करते हो, सेम काइंड ऑफ नॉलेज है, तो उस केस में आपकी यूएसपी क्या है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, I 100% agree. यस। सेकेंड, गुड लाइजनिंग विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत है। एंड थर्ड, अपडेशन ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आपके पास वो यूएसपी है टू compete और टू स्टैंड इन द मार्केट। अपडेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या? अपडेशन जैसे रेगुलर नोटिफिकेशन आ रही हैं, रेगुलर लॉ चेंज हो रहे हैं, आपको उसके बारे में डेली पता होना चाहिए। ठीक है, whenever it यस comes. यस। सो एक कोट मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते मुझे लॉ पता नहीं था तो ठीक है। तो लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। Absolutely. Ignorance of law is not an excuse. आपने हाँ, CS किससे रखा हुआ है? यस एग्जैक्टली। तो हमें ये अपडेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे क्लाइंट को पेनल्टीज आ जाएंगी। वी आर ऑन द रिटेनरशिप बेसिस, वी हैव That is what makes you so special, yes, क्योंकि yes, आपका फॉलो अप एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, बहुत फॉलो ज्यादा अप स्ट्रांग है। एंड गुड लाइजनिंग। गुड लाइजनिंग व्हाई? बिकॉज अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, वो सारा गवर्नमेंट जैसे ही आया वैसे ही मैसेज शूट करना वगैरह। yes. अच्छा, मैं इसमें एक चीज और पूछूंगा आपसे
कि now like your follow up and everything is very good and all that. What is the kind of company that you are looking for should come to you now? Yes. ठीक है, मतलब आपने स्टार्टअप बोला है, देखिए मतलब इफ आई बिल्ड अप रूम वेयर ड्रम्स आर प्रैक्टिस जैसे ये है, दैट इज आल्सो स्टार्टअप, Yes. but then is that your client? Yes. That is what I want to ask कि what is your language where it says that this is the kind of clients that I want? एक तो ये है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, Right. या ऐसे लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ, वो एक अलग चीज है. What are the kind of clients that that you So work? I'm looking for a client, a listed company and a brand company like a PepsiCo, right? Like a Coca-Cola, right? Like a Shalimar Paints. तो मैं ऐसे ब्रांड्स के साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ. कितनी कंपनीज का मैं सेक्रेटरी ऑडिटर हूँ, राइट? बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनीज का. तो Branded हाँ, companies ब्रांडेड का. कंपनीज के मैं सेक्रेटरी ऑडिट हूँ, जिनकी मैं सेक्रेटरी ऑडिट कर रहा हूँ, लिस्टेड कंप्लायंसेस कर रहा हूँ. अच्छा, एनबॉक्सिंग दी आउटसाइड सोर्स जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था यस कि मतलब कि अगर आपके पास कंपनी में जैसे प्राइवेट यस बड़ी वाली प्राइवेट यस लिमिटेड यस यस या पब्लिक लिमिटेड कंपनी आई है तो यस आपको हायर करना ही पड़ेगा एक्सटर्नल. यस आई हैव अ वन ग्रुप जिसमें होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं. 20 कंपनी सेक्रेटरीज आर ऑलरेडी सिटिंग इन द कंपनी, बट स्टिल दे हैव टू टेक अ सर्विस ऑफ अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी लाइक मी. तो मैं उनको सर्विसेज देता हूँ. बट तो विल दे वहाँ बी पे डूइंग राइट इन दैट? yes, definitely because that is the part and parcel of the law. We have अच्छा. to compliance it. It's not कि उनका ऑप्शनल विश है कि मुझे हायर करना है. That is a mandatory and compulsory, और they pay a more as compared to the startup because the risk is very high. Because the risk Yes. is very high. Yeah. All right. So मतलब basically right from birth till death Yes. you cover every aspect of the company and make Right. the journey smooth. Right. Whether अब वो 4 साल बाद कंपनी चलती है नहीं चलती वो बात अलग है, but Right. then since you have helped a person open the company, you handled it up to this Yes. much of Exactly. exactly. Right. So how many people are there in your office? Like if somebody has to get in touch with you, what is the kind of load you can take on? That's what I'm trying to know. So I have a team of 10 people in my team. Apart from this, I have more than 20 associates all over the India who are associated with me, like a chartered accountant, a company secretary, all over the India. Because we are not providing service to the Delhi only. We are not limited. We are providing. So to the I would like to ask कि कहाँ पे all over India आप all over provide कर India. रहे हैं? So I have associated in the all the major cities like Bombay, Calcutta. वहाँ पे भी Hyderabad. आपके Yes, clients हैं? yes. Clients हैं जिनको हम all online services दे रहे हैं, और whenever they need a physical presence, we have to move out. Otherwise, we have associated local area जहाँ पे वो हमारे काम कर रहे हैं. And we are not sitting with the India territory because हमारा काम online है. So we have a multinational clients. कि हम यहाँ से बैठ के कनाडा बेस्ड कंपनीज का भी हम काम कर रहे हैं. Yes. But Canada-based companies that are registered in India or in Canada? इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने एक okay, सब्सिडरीज okay, बना okay. रखी हैं. मैं एक चीज करूंगा, सी इन सबके अंदर ना देयर इज वन थिंग दैट इज व्हिच इज ड्राइविंग मी टू अ वेरी पर्टिकुलर पॉइंट. ये सारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ यू डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद गवर्नमेंट पर्सनल्स. राइट. तो क्योंकि आपने मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक हम ना एवरी लेटर के बाद कंप्लायंस में घूम रहे हैं. मतलब इतना ज्यादा है, तो जब तक आपके रिलेशनशिप अच्छे ना उन लोगों के साथ वो काम हो नहीं सकता. एग्जैक्टली. So I would like to know how adept are you with your relations with the government personnel and everything, and where do they come of help? Why somebody should come to you because of this? सो अभी आपने मेरे से यूएसपी के बारे में पूछा. हाँ. तो यूएसपी में मैंने सबसे पहले आपको अपनी लाइजनिंग के बारे में बताया. आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप मेरी लाइजनिंग कहाँ पे आती है. फॉर एग्जांपल मुझे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे पिटीशन फाइल करनी है. देयर इज, आपको पता है तारीख पे तारीख मिलती रहेगी. राइट. अगर आपकी लाइजनिंग स्ट्रांग है तो आपको इतनी तारीखें नहीं मिलेंगी. आपकी फाइल जल्दी मूव आउट हो जाएगी. प्लस दे हैव अंडरस्टैंड, अगर गुड रेपो रेट है तो वो उनको पता है कि इनकी कंप्लायंसेस कंप्लीट होंगी, इनकी फाइल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्योंकि अगर आपको काम करना आता है तो आपकी कंप्लाइंट टिच होगी, आपकी कंप्लायंसेस और आपकी जो फाइल होगी वही आपके बारे में बता देगी. और जितनी ज़्यादा आपके पास क्लाइंट होंगे उतने ज़्यादा पब्लिक लाइजनिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा क्लाइंट्स हमें मिलते हैं. क्योंकि हमने अगर एक सक्सेसफुल करा, केस करके दिया और टाइमली किया. सबसे हमारे यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ काम लेकर आओ. डेडलाइंस. यस. अगर आपने टाइमलाइन के साथ काम करा तो डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको दूसरे क्लाइंट रेफर करते चले जाएंगे कि हाँ इन्होंने हमारा टाइम से काम करा दिया था. Absolutely. That's what it is. तो
So basically हम ये बात करेंगे कि अगर if a company has to stay in good health, apart from its finance, company as a health, company as a person, company as a health, जहाँ से हमने इंटरव्यू शुरू किया था कि even companies are known as an entity, a living being, a person, even in the books of accounts में it is what do you say, addressed as such. अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो I don't think I'm wrong. I think I'm right Yes, over yes, here, है ना? yes. तो if the company has to stay in good health, you need a CS who knows what is the right vitamin for good health. And that is basically, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. Now we've talked about compliance. आपने देखा स्टार्टिंग से लेके अब तक कितनी बार हमने compliance की बात करी, कितने पार्टनरशिप, लर्निंग शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. जो इस चीज के अंदर निपुण है, that is the right person, someone like Vivek Sharma. That's what it is all about, right? Right. So we need to be healthy at that point of time. Right. So yeah, the company's health matters a lot. So इसके ऊपर then I have something to share with you since you talked about company's health. देखिए कंपनी की हेल्थ तब बनेगी जब आपकी खुद की हेल्थ भी अच्छी होगी, Right, तो है ना. right. And so for that reason we have a gift hamper for you from our gifting sponsor say, which we are giving to you. आरोग्य gluten free foods, it's one of the gifting partners of TVS. पिछली बार भी ये लोग हमारे साथ थे. They were so kind to give their gifts. So they have this flour which has a very special concoction जो सिर्फ इन्हीं के पास है इंडिया में. ऐसा इसका फॉर्मूला whatever जो परसेंटेजेस में जो बनता है ना, मतलब they are much better, and there are some cookies in this, there's some namkeen in this. So this is a gift from our side. Thank you so much. Thank And you so much. I hope that you always remain hale and hearty and healthy, and you're able to build your company having and create 10 more Viveks like you in your own company based on that. Because I think आपकी टीम भी, यहाँ पे भी टीम, आपने बोला बाहर के भी 20 people है, लेकिन यहाँ पे भी आपके काफी लोग Yes, होंगे yes, आपके ऑफिस yes, में, yes. है ना. Once again, let people see, Yes. friends, what Mr. Vivek Sharma is doing, और उनके ऑफिस का नाम क्या है, and what is the contact number. So my name is Vivek Sharma, co-founder of Deep Dive Corporate Advisors LLP, and my contact number is 9711 436 799. Thank you very much. Wonderful. And they're based out of Pitampura Pitampura. in Delhi, New Delhi. Yes. That is one thing. And your wife is also company CS, and CS, company. you both are partnering Yes. together and all that. Right. So on the lighter side of it, who's the big boss? Always. He is a Always. always. देखो हम लोग तो कहते हैं घर में होम मिनिस्ट्री के तो ऑफिस से भी होम मिनिस्ट्री ही हाँ, है. yes. So well, I think that's really wonderful. But I think you people go very well together and all. Right. Your team is also quite adept and all. So I'll come to a very interesting part of this entire conversation that we have had regarding what you do and all that. It is called a rapid fire round. Right. ये थोड़ा सा मस्ती वाला section है. Okay. So let us understand Right. how you take it and how witty you are in the answers that I'm going to ask you. क्योंकि अगर आपने answers नहीं दिया तो then we have a very surprise gift for you as well. Okay, Okay. great. So let me ask you the first question. If there is one word that defines entrepreneurship as a CS, yeah. Professionalism. Professionalism. Wonderful, wonderful. So yeah, because there's so many compliances, एक read between the lines. इतना पढ़ते कैसे हो, मतलब ये कैसे पता लगता है? तो बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद का काम है. राइट राइट. नहीं, पहले हमें बेसिक पढ़ लिया हमने, राइट. अच्छा, अब ये हमें कॉलेज एजुकेशन में वो yes, सारा. yes, हमें हाँ ये Okay. अब हमें बस सिर्फ टच बेस बना के रखना है डिपार्टमेंट के साथ और लाइजनिंग के लिए. Question number 2. The worst thing that a brand owner could do, a brand owner like a CS person like you could do. What is the worst thing? Again, updation of knowledge and become a good speaker. अच्छा. Because there is a difference, right? स्पीकर क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज साथ साथ चलेगी तो आप लॉन्ग रन कर. हाँ. So मैंने पूछा है ऐसी worst thing क्या है जो एक brand owner could do, मतलब वो ये है, वो इन दोनों चीजों में अगर निपुण नहीं है जो आपने बोला, there's nothing. It's funeral for your company and more than that for your client. क्योंकि 100 के 10 लाख देने पड़ जाएंगे. Yes. सीधा का सीधा. Brilliant. Question number 3. The easiest way to make a brand sell, your CS brand sell, that you are a CS. So आप लोगों को allowed नहीं होता advertising and all that. So what is the easiest way to make yourself sell? So as I've already told you कि मैंने I have started my practice from very first day. So it is very difficult. So आपको first एक break चाहिए होता है, like कि आपको किसी की help चाहिए होती है in your circle. अगर आपने ये काम अच्छा किया, आपके पास sky is the limit कि आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो. Absolutely. Right. तो word of mouth से ही हमें business बनता है.
the greatest offer you can give to a customer, what would that be? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग, सो माय प्राइसिंग इज नॉट मच, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से प्राइसिंग ही है, रीजनेबल प्राइसिंग. Well, I really hope that doubles and quadruples now that you are here and we're able to play a role in that one. Right. Yes, as we speak now, I think we are close to around 25,000-40,000 subscribers. हम लोगों ने Right. when we shot this thing, it was around 25,000 subscribers, and so I really hope that बहुत लोग आपसे टच में आए. Right. And please see the talents, keep sharing it, and वो definitely आएगा. So is it quantity or quality for you वैसे? जब when I have started the practice, that time it's only the quantity. Now I am focused on the quality. Well, now it is on Because the we quality. have to turn out. कि जब आप इनिशियल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस समय आपको पैसा ही दिख रहा होता है, बट बाद में क्वालिटी दिखती है. So the one word compliment that you can give to your team. सिंसियर एंड डेडिकेशन टू द वर्क. Absolutely. बहुत सुना है. Right. Sir, really. Yes. Absolutely. Okay, the place where advertising agencies go wrong when it comes to brand building for a CSC. कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट जैसे हमारे जैसे कंसल्टेंट से बात करेंगे, मेरे को बिजनेस मामला है, आपको क्या लगता है वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? जो हमारा जो प्रोफेशन है बहुत नीश है, बहुत स्पेशलाइजेशन है, तो एवरीवन इज नॉट अबाउट नोज अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी को भी सेल आउट करना है तो पहले तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पता होना चाहिए. वही पता सबसे होना अपना चाहिए. तो सबसे बड़ी गलती यही है कि यार, पता ही नहीं है ना, क्या वो क्या? पता कर सकते हैं. Yes. That's why. वो सी और सीएस को सेम ही समझते हैं. Absolutely. The best compliment that you would love to hear regarding your company. Complimentary, like you have already given lot of compliment to my company and to me also, कि follow बहुत strong है. नहीं बहुत हो गया. Yes. So compliment is the follow-up basically. Yes, That follow is what you would up. like to say. Okay. One thing you say to yourself first thing when you get up in the morning. I have to manifest myself, कि मैं manifest करता हूँ कि मुझे next क्या करना है, क्या बात मुझे है. क्या बनना है, तो वो मेरी manifestation है जो मैं वो करता हूँ. बहुत ही अच्छा. When you wake up with that kind of a thought, you're bound to gain glory. One thing you say to yourself before going to sleep. बेसिकली हमें अगले दिन के लिए पहले ही तैयारी करनी होती है कि हमें कल क्या करना है, डिपार्टमेंट जाना है तो क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग में क्या करना है. यस, सो आई हैव टू जॉट डाउन ऑल द टू डू लिस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप. Excellent. अब this is the last question. Since you are a maestro when it comes to CS, तो एक गुरु मंत्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र अपना, अगर आप एज ए टिप देना चाहेंगे और जितने CS हैं उनको क्या टिप देना चाहेंगे? तो मेरा अगेन एंड अगेन एक ही बात है कि ऑनेस्ट रहो क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट सब कुछ जानता है. अगर आपने गलत एडवाइस कर दी और आपने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा कि मैं क्लाइंट को बेवकूफ़ बना के पैसे अभी ले लेता हूँ, तो फ्यूचर में क्लाइंट आपका नहीं आएगा. और अगर आपने एक क्लाइंट को अच्छी एडवाइस दी थी, वो आपको 10 और 20 मल्टीप्लाई करके क्लाइंट वापस करेगा. Absolutely, Yes, they'll get yes, more clients. more clients. Yeah, that's what it is. You know, Yes. work becomes more work, success becomes more success. So do the best that you can for your client. That would really help you. और इसी के साथ आपने बहुत अच्छे जवाब दिए and you know सटीक एकदम related to the industry. Thank you so much. So हम आपको देते हैं एक इसके लिए gift hamper, another one, Dr. Meenu's range of cosmetics for you. Thank you. She was also very kind enough to come in last 2-3 seasons also. इस बार भी उन्होंने हमारा साथ दिया. So this is for you. Thank you so much. For you and your wife, definitely. Thank you. And I hope आपकी जर्नी चलती रहे इसी प्रकार. I'll just keep it down. मैं एक काम करूँगा. I'll just pack it up and give it to you when you're about to leave No the worries, studio. no worries. And we just have another short 10 seconds that we have. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा. आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सो मेरा सक्सेस मंत्र मेरी फैमिली है. क्या मेरी फैमिली बात मुझे है. मोटिवेट करती है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड करे. तो ये मेरा सक्सेस मंत्र है. उनको जब मैं खुश देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं डेली इतना राइज करता चला जाऊँ कि वो मुझ पर, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे प्राउड करे. क्या बात है. That's such an amazing thing to say. अपनी फैमिली से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं ये. You know, when you look at your wife, your children, you draw the strength. Yeah, they are the people whom I have to do something for. Brilliant. Thank you. That's a kind of a first in the last. हमारे पिछले सीजन में भी रतन भैया आया नहीं था सर. हाँ, I don't think we had somebody say it to this level, to family का लेके. Really amazing. Very impressed. So on that count, I want to gift you something very, very, very special. This is a book called Find Your White Space by Dr. Vikram A. Munshi. Okay.
So his company White Space Consulting Limited, आपको मैंने एक बार मिलवाया था मैंने इनसे, remember? इनका भी लाइजनिंग करा के इनका काम इनका कराया काम करवाया था और उन्होंने इतनी, so that's a live testimonial from my side. वो मेरे पास आए थे, सुदर्शन ऐसा कुछ है, and you know विक्रम मुंशी is a very 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 particular person. वो इतनी जल्दी किसी को हाँ बोलते ही नहीं है, वो मिलते ही नहीं है. तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार मिलो. मैंने कहा यार तू एक काम कर दोस्त, you meet विवेक शर्मा. He spoke, then I called him and he said, "Hi, I spoke to him, he said he'll get back." And उन्होंने फॉलो अप करके उनको बताया क्या हो सकता है. कह रहे उन्होंने बोला है कि ऐसा इतना पैसा लगेगा and this will what will happen, this is the fee and all. And then he said, सुदर्शन कोई नहीं करा पाया था वो काम जो विवेक ने करा दिया. He really got it done यार, amazing guy. तो ये उनकी लिखी किताब है फाइंड योर वाइट स्पेस, कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करी, ये मैं आपको देना चाहता हूँ. इट्स अ ब्रिलियंट बुक, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, क्योंकि जो लिखा है इसमें उन्होंने 3 वाकयात ऐसे लिखे हैं जिसके ऊपर ये पूरा है, जिससे उन्होंने रियलाइज किया कि लाइफ कैसे पलट गई और हर कोई अपनी लाइफ कैसे पलट सकता है. So this is something from our side to you. We thought we would give it to you because you are a person who is into so many compliances. Right. Your life ka compliance is this book, because that will help you find what you want to. Right. That is what this is all about. So thank you, Vikram, again for this wonderful thing, for writing such a masterpiece. So this is what it is. So that's it, dosto. On the sets of the Great Indian Brand Show, we are with the founder director of Deep Dive Corporate Advisors LLP, Mr. Vivek Sharma. That is CS Vivek Sharma. And we always used to say VS, the CS, that is Vivek Sharma, the CS. Agle hafte we'll come back and we'll meet another wonderful guest on our onward journey. Until then, thank you so much for being with us over here from the sets of the Great Indian Brand Show with Vivek Sharma today. Sudarshan R. Chettur. बढ़ते रहो, एक दूसरे को इंस्पायर करते रहो, क्योंकि हम आगे बढ़ते रहेंगे तभी आगे चलते रहेंगे, और जब साथ देगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया. We are not a population of 140 crore. हम एक 140 crore का support system है. That's what we are. जीतो भारत का दिल. Thank you so much, Vivek, for being with us. Thank you for inviting me. Thank you. It's rocket launching day, right on its